Okay. So today's lesson is about the current situation, what's happening in the world, a lot of violence, wars are happening, bloodshed, killing. So we have to see why man does this when Allah has actually, advised and guided and given us commandments that we are not to kill. So what happens that humans come to this level that they are going to kill each other? So we're going to see this from Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Surah number 2 ayat number 30 وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ And when your Lord said to the Malaika, إِنِّي جَائِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً I am creating in this earth a vicegerent, a khalifa. قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا So they say, are you going to create someone who is going to make facade here, who's going to create disturbance and disorder and mischief here? وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ And he's going to shed blood. So Malaika, angels already said that you're creating man who is going to be shedding blood. But Allah says, وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ And Malaika said that we are the ones who glorify you with praise, وَنُقَدِّسُ لَكَ And glorify you, your holy name. Kala inni alamu mala ta'lamun. So Allah says, I know what you don't. So Allah knows more than Malaika, and Allah creates man as his Khalifa on earth. And then Allah teaches man all the names, Asma ul Husna, and that is the knowledge that angels don't know about. And that is why Allah says that man is going to learn these names, he's going to understand them, and he's going to find these attributes, which are Allah's attributes, on a human level in himself, and then try to implement them in his personality. And that is his job, and that is what his responsibility is, and that is the purpose that we are all born with, that we have to follow the guidance, we have to understand that knowledge of the names of Allah, Asma al Husna, and those attributes we have to act upon. What are all these attributes? The Ar-Rahman, the Rahim, and Ghafoor, and all the rest of the names that Allah has. So we have to understand and then implement the attributes within our personality. But what happens then? Allah Ta'ala orders Malaika to bow to Adam in ayat number 34. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ And then we said to Malaika that bow to Adam. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ And they prostrated, they bowed down except for Iblis. Abba was takbar. He refused and he was arrogant. Wakana minal kafirin. And he was of those who did not believe or who rejected. So Iblis did not bow, did not submit to Allah. Now, Iblis term comes from the word balasa, root word, and balasa means grief. So anyone who is grieving, who is wrapped up in grief, which is Iblis, will not submit. So that is where the trauma comes in. So anyone who is holding on to unhealed trauma, which may be your personal experience or received through generations, you will not be submitting to Allah Ta'ala from that side. So this is what we have to understand as humans. Any part of us which we haven't let go of and we're holding on to that grief is not going to be submitting. And then that Iblis, when activates, becomes Shaitan. So this is where it's coming from. So when you understand this about your own self, you can understand this about others also, that when they're doing something wrong, going against Allah's commands, that is because somewhere there is grief, there is trauma, and that hasn't been healed, that hasn't been resolved. So to ayat 2 and Surah 2, ayat 84. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ
And then we took covenant from you, La tasfikuna dima'akum. Do not shed blood amongst yourselves. So this was a covenant already taken from all the souls. Allah has, this is our soul contract that we are not going to shed blood. So anytime we are going against the soul contract, we are doing zulm on our own nafs. It's nobody else we are harming ourselves. Because Allah says that we are not the ones who do zulm, they themselves do zulm on their nafs and on their souls. So this is what man does, because man is given the allowance to use his will, and when with free will, Aji auntie knows everyone. Aji auntie asked me last time that. अच्छा चले great जी perfect. We just started जी 5 मिनट हुए हैं अभी. So we're just trying to understand कि जो आज का कुछ और चीजों की है जी. So Surah 284, Surah 2, ayat number 84, we just learned that Allah has taken a soul contract from us to not shed the blood. Now, yes, please, yes. Where, it says recall. Recall. So how do you know it's talking about the soul contract? Because soul से बात हो रही है. Let me see the ayat again. जी. वइज़ अखज़ना मीसाककुम, और जब हमने अखज़ किया तुमसे मीसाक, ला तस्फिकूना दिमाअकुम, नहीं तुम बहाओ खून को. ठीक है जी. तो ये पीछे भी बात हो रही है, बनी इसराइल से बात हो रही है, जो कि हम है, हम वो नहीं है इसराइल जो अपने आप को इसराइल कहते हैं. वो तो उन्होंने तो 1948 में नाम ले लिया ना. ये तो अल्लाह के टाइम, अल्लाह की किताब से बात आ रही है. तो बनी इसराइल कौन थे? बनी इसराइल हम हैं जो कि मुसलमान हैं, जो कि सबमिट करने वाले हैं. तो अल्लाह ने उनसे कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है कि आपने और ये जो मीसाक है ये हमारी सोल के साथ होता है. So, actually, we'll move forward. Then, so this is what happens when your grief acts. Surah 7, ayat number 16. So Iblis is the same, instance incident has been presented before. And in ayat 16, Iblis then says, Kala fabima aghwaytani. So कहता है, क्योंकि आपने मुझे टेम्प्ट किया, अल्लाह से ये कहता है, ला अक उदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तकीम. मैं बैठ जाऊंगा इनके रास्ते में जो कि सिराते मुस्तकीम है. तो मैं लोगों को भी आपके रास्ते पे नहीं आने दूंगा, क्योंकि आपने मुझे इस तरह से मुझे एक्सपोज कर दिया, आपने मुझे दिखाया कि मैं गलत हूँ. तो आई विल ऑल्सो सिट एंड आई विल डिस्ट्रैक्ट देम. तो ये कहीं आपको गलत जगहों पे नहीं मिलेगा शैतान, आपको अच्छी जगहों पे, सीधे रास्ते पे मिलेगा. क्योंकि वहां से उसने हटाना है. गलत जगह पे तो उसका काम ही कोई नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी लोग गलत जगहों पे काम कर रहे हैं अपना. दे आर ऑलरेडी ऑन हिज ट्रैक. So he's going to be sitting on Sirat Mustaqim trying to move you out of there. सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैने आइदिहिम, और फिर मैं आऊंगा, आई विल असॉल्ट देम, उनके हाथों के दरमियान में से. मतलब
whatever situation at hand, वहां से आऊंगा, उनको हमला करूंगा। एंड वमिन खल्फिहिम, और उनके पीछे से, मीनिंग उनके पास्ट से, पीछे से भी आपको गिल्ट में डालेगा, अटैक करेगा। और व अन ऐमानिहिम व अन शमाइलिहिम, एंड फ्रॉम द राइट साइड एंड फ्रॉम द लेफ्ट साइड, ऑल अराउंड। मतलब राइट साइड भी, अगर आपकी कोई सही साइड भी होगी ना, वहां से भी अटैक करेगा आपको, फ्लैटरिंग करा के कुछ ना कुछ आपको जिस तरह से चढ़ा देता है, ईगो आपकी बूस्ट कर देता है। और आपकी लेफ्ट साइड से भी, जो आपकी अगर कोई गलत साइड है, वहां से भी आपको गिल्ट में डालेगा, शेम कराएगा, ब्लेम कराएगा। तो ये सारे जो है ना डायनामिक्स, ये शैतान अपने अंदर डालता है। और इस किस्म की चीजों को हमने पहचानना इसलिए है कि ये हमने नहीं करनी है। ये शैतानी तरीके हैं कि आप लोगों को ब्लेम, शेम, जज करके उनको बुरा भला करें, ऐसे नहीं करना। तो हमने अगर किसी को लेकर आना है ना सीधे रास्ते पे, तो दैट इज टू बी डन विद काइंडनेस, विद कंपैशन, विद एम्पैथी, नॉट थ्रू डरा धमका, ब्लेम, शेम। दैट इज द रॉन्ग वे। ऑलराइट, नेक्स्ट हम देखते हैं जी हाउ टू हील। बिकॉज अगर हम शैतान का भी रूट वर्ड देखें, शा त्वा न, इट कम्स फ्रॉम somebody who's moved away। तो शैतान भी जब अपने एक्शंस दिखाता है, तो वो रहमत के करीब नहीं होता, वो अपनी सोल से डिस्कनेक्टेड होता है। तो कोई भी इंसान अगर ईवल काम करता है, तो वो अपने सही बैलेंस में अपने अंदर रेगुलेटेड नहीं होता है। तो ये एक्टिविटीज तभी होती हैं, शैतानी एक्टिविटीज, जब आप अल्लाह की रहमत से दूर होते हैं, अल्लाह की गाइडेंस से दूर होते हैं, डिवाइडेड होते हैं, डिस्कनेक्टेड होते हैं। तो ये इंसान करता है इस तरह की चीजें जब इस किस्म की स्टेट में आ जाता है। अब ये हमने देखा है कि आजकल बहुत बात हो रही है ऑफ जनरेशनल ट्रॉमा। सो इट मे नॉट बी योर पर्सनल एक्सपीरियंस, बट इट कैन बी passed down through generations also. Now, Allah says in Quran कि no bearer of burdens will bear the burden of another. तो मतलब ये भी है कि आपने किसी का बर्डन तो नहीं उठाना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको चीजें पास, जी, और आपको चीजें पास ऑन नहीं हो रही हैं। जस्ट लाइक वी आर एन evolved form of our ancestors, we carry their strengths, we carry their weaknesses, we carry their trauma also, and we carry their physical traits also. अब किसी की हाइट है तो किसी की लुक्स है तो किसी के कुछ है, वो भी है, और किसी की वीकनेस भी है। तो ये सब आपको पास डाउन होता है जेनेटिकली, डीएनए के अंदर कोडेड है। अब एक और चीज, तो ये आपके जो ट्रॉमास भी होते हैं ना, किसी ने किसी टाइम के ऊपर पता नहीं क्या सहा, जिस तरह इमिग्रेशन या पार्टीशन हुई, उन्होंने तकलीफ देखी, तो तकलीफ, जी, तो उस तकलीफ का जो नतीजा था, हाउ दे सॉर्ट ऑफ हैंडल्ड इट, देयर कोपिंग मैकेनिज्म, they developed certain patterns of behavior that got passed down as a family pattern. As you know, things, this is how we do things, this is how we live. So your lifestyle, the way you handle troubles, situations, कोई टेस्ट आते हैं, आप घबरा जाते हैं, पैनिक करते हैं, वो सब चीजें जो है, those are passed down to you. That study is called epigenetics. Epigenetics. तो ये इनका समझना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज आप अपने ट्रॉमास को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे रीड करते हैं। Now this is reversible. The good news is your coping mechanisms or your patterns of behavior can be changed. So this is where psychiatrists come in. This is where therapists come in. This is where meditation comes in. This is where healing comes in. Yeah. You heal your trauma or your trauma of your generations, because kahin na kahin energetically there is a block inside of you which needs to be released. And when you release that, along with that, the patterns, the wrong patterns, जो भी आपकी एक cycle चल रही होती है, it's cyclical, you know, in behavior चल रहे होते, वो आप उनको खत्म करने के काबिल हो जाते हैं। अब how does Quran help us in that? एक तो कुरान शेड्स लाइट ऑन आपने करना क्या है, किस तरह करना। तो जब आप गाइडेंस, तो गाइडेंस इज देयर, प्लस द ट्रिगर्स दैट कम टू अस, अल्लाह ताला टेल्स अस तकवा, तकवा इज सेल्फ रिस्ट्रेन। आप उस तरफ जाएं ही नहीं, और जब जाएं तो पॉज करें।
पॉज करने का मतलब है तकवा, सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करें। उसके बाद सोच समझ के किसी चीज को रिस्पॉन्ड करेंगे तो वो जो एक आपका ऑटो सिस्टम रिस्पॉन्स है किसी चीज का, वो चेंज हो जाएगा। सो दैट इज कॉन्शियस लिविंग बेसिकली, जो हम सीख रहे होते हैं हर जगह। डोंट जंप टू एनीथिंग, डोंट रिएक्ट, यू रिस्पॉन्ड। दूसरा जो हमें हीलिंग कहाँ से नजर आती है, वो हजरत ईसा से नजर आती है, बिकॉज ही इज शोन इन कुरान एज अ हीलर। तो हजरत ईसा की हम देखते हैं सूरह 3 आयत 49। बिकॉज ये सब मिसालें अल्लाह ने हमारे लिए दी हैं, हमारे मसाइल जो है, प्रॉब्लम्स जो है, उनमें सीखने के लिए। सूरह 3 आयत 49। वरसूलन इला बनी इसराइल, हजरत ईसा को अल्लाह ने भेजा बनी इसराइल के लिए मैसेंजर, रसूल। अन्नी कद जिअतुकुम बिआयतिन मिर रब्बिकुम, बेशक मैं लाया हूँ तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से आयत। अन्नी अखलुकु लकुम मिनत तीन, और मैं बनाता हूँ तुम्हारे लिए तीन में से, मट्टी क्ले में से, कहाई अतित तैरे, जैसे शक्ल एक परिंदे की, बर्ड की। फन फुफू फीहे फयकूनु तैरन, और फिर जब उसमें मैं फूंक मारता हूँ तो वो हो जाता है उड़ने वाला। ठीक है जी, बेइज़्निल्लाह, अल्लाह की इजाजत से। नाउ व्हाट डज दिस मीन फॉर अस? वी आर ऑल्सो क्ले के, मोल्डेबल क्ले के हम एक अल्लाह ने बनाई हुई है, पुतले हैं जी, बिल्कुल। तो जी 3 की 49 जी। तो जब हजरत ईसा की जो स्पिरिट है, जो हजरत ईसा का मैसेज है, जो हमने देखा है कि वो हजरत मरियम से पैदा होते हैं, जो कि एक प्योर फेमिनिन है, प्योर सिंसियर फेमिनिन हु गार्ड्स हर चेस्टिटी। तो इसलिए अल्लाह ताला उनमें फूंकते हैं। तो read it as a concept. So that conceptual understanding comes to you when you keep good, pure emotions in yourself. तो अल्लाह ताला आपको गाइडेंस देते हैं, अल्लाह ताला आपको वो स्पिरिट भेजते हैं जो कि आपके लिए हीलिंग होती है। यू आर स्पिरिचुअली एलिवेटेड। जब जो फ्लायर का मतलब ये है, why how do you fly? You fly spiritually, you become elevated, you become detached from the earth, ये मतलब है। तो जब वो फूंक मारते हैं अल्लाह की इजाजत से, तो इंसान एलिवेट हो जाता है, असेंड कर जाता है। जी, लीव ऑफ फेथ टू डू दैट ऑल्सो, जी बिल्कुल, वो तो साथ साथ आती है, हाँ जी बिल्कुल। उसके बाद व उबरी उल अकमहा, और मैं जो ब्लाइंड है, अब ये ब्लाइंड किनको कह रहे हैं? जिनकी इनसाइट नहीं है, जिनको नजर नहीं आ रहा, ब्लाइंड साइट है उनकी। वो एक्चुअली फिजिकल अंधे की बात नहीं कर रहे, वो इनसाइट की बात कर रहे हैं कि आपको चीजें नजर नहीं आ रही, उनको वो हील करते हैं, उनको इंसाइट देते हैं ताकि आप देख सकें क्लैरिटी के साथ। वल अब्रासा, और ये लेपर्स नहीं, ये साइकोलॉजिकल पैचेस वाले लोग हैं। यहाँ पे ट्रॉमा की बात हो रही है, जिनके जगह जगह साइकी के अंदर ये ब्लॉक्स ऑफ ट्रॉमा है, हर्ट, सफरिंग, पेन, दे आर ब्रोकन पीपल। तो उनकी जो दिमाग में उनकी जो सोच है, उसके अंदर जगह जगह पैचेस हैं, उसको वो हील करते हैं। एंड वउहिल मौता, और मरे हुए को जिंदा करते हैं, बी इज़्निल्लाह, अल्लाह की इजाजत से। अगेन मरा हुआ जो स्पिरिचुअली डेड है, जिसको शऊर नहीं है, जिसके अंदर वो रूहानियत का एलिमेंट नहीं अभी जागा है। बहुत सारी एरियाज में आपकी रूहानियत कभी आ भी जाए, स्टिल वी हैव अ लॉट ऑफ पार्ट्स जिसमें नहीं होती। इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। नोबडी कैन से कि अब मुझे सब समझ में आ गया, आई हैव अंडरस्टूड द स्पिरिचुअलिटी। नो, यू कांट। There are parts of us which will always remain blind or affected by some trauma patches, or they are dead. So इनको हील करने के लिए हजरत ईसा का जो कॉन्सेप्ट है, जो स्पिरिट है, उसके लिए आपको प्योर फीलिंग इमोशन चाहिए। तो अल्लाह ताला आपको भेजेंगे, गाइडेंस भेजेंगे, हिदायत भी और रोशनी भी, लाइट भी भेजेंगे, क्योंकि हजरत ईसा इज कलिमतुल्लाह, द वर्ड ऑफ अल्लाह। So the word of Allah is whatever is being said here, not just the text but the spirit of it. तो वो जब आपको समझ में आएगी अल्लाह की तरफ से, तो फिर वो आपके रास्ते खोलेगी।
आपकी आंखें खोलेगी, आपके दिमाग खोलेगी, आपको जिंदा करेगी। व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलून, और साथ ही मैं इन्फॉर्म करूंगा जो तुम खाते हो। यू सी, वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये चीजें नहीं कर सकते, आप स्पिरिचुअल एलिवेशन पे नहीं पहुंच सकते अनलेस यू वॉच योर फीड। एंड इट्स नॉट जस्ट खाना फीड, इट इज व्हाट यू आर कंज्यूमिंग फ्रॉम एवरीवेयर। Absorbing. एब्जॉर्बिंग, आप किस कंपनी में बैठते हैं, आप क्या बातें सुनते हैं, आप क्या देखते हैं, और What are you आप क्या assimilating? सोचते हैं। Whatever you, because you become, you're a product of all that you're exposing yourself Yeah. to. तो Circumstances. वो बताना बहुत जरूरी है कि आप ये काम जो कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, इनसे रुकना होगा। तो ही विल इन्फॉर्म अस। ये चीजें साथ साथ आती हैं कि आपको बताया जाएगा आप जो कंज्यूम कर रहे हो उसको क्लेंस कीजिए, ठीक करें। वमा तद तद दाखिरून, और जो कुछ आप स्टोर कर रहे हैं। स्टोर करना भी क्योंकि आप पाइल अप करते हैं। हमें आदत होती है कि जी, जो अच्छी चीज हमें नजर आती है, मीनिंग इवन स्पिरिचुअली भी, वेल्थ भी, सब कुछ जो अच्छा हो रहा है अपने पास इकट्ठा किया, वो हमने देखा है, हमने निकालना है। ज़कात देते रहना है साथ साथ, जस्टिफाई करना है। एनीथिंग विच इज एक्स्ट्रा, a part of that has to be given out to others, otherwise it is extra burden on us। वो भी नहीं करना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो पूरा अल्लाह का सिस्टम है ना सलात का, नंबर वन, कि आपने अल्लाह के अहकाम समझने हैं, कनेक्शन बनाना है, मेडिटेशन करके आपने सलात एस्टैब्लिश करनी, कायम करनी है। सो दैट इज योर कम्युनिकेशन एंड कनेक्शन विद अल्लाह। सेकेंडली, आपने फास्टिंग करनी है, जो यहाँ पे बताया जा रहा है ना कि आप क्या खाते हो, तो वो फास्टिंग आपने रुक जाना है उन चीज़ों से जिनसे आपको नुकसान मिल रहा है, तो आपका रोज़ा भी यहाँ पे अप्लाई हो गया। तीसरा, आपकी ज़कात आ गई कि जो आप स्टोर करते जा रहे हो, जो आपके पास एक्सेस में आता जा रहा है, उसका एक हिस्सा आपने निकाल देना लोगों के लिए, ताकि उसकी तज़किया भी हो जाए, और आप फिर टोटली आप फिर अपने आप को अलाइंड समझेंगे अल्लाह के सिस्टम के मुताबिक। देन यू बिकम अ चैनल, यू आर एलिवेटेड, you are blocking from all the wrong things, and you're giving out in Allah's way. This is the way to be. This is how you keep receiving the the life, the energy. So ये हमने करना है। फी बुयूतिकुम, जो तुम अपने घरों में स्टोर करते हो अनजस्टिफाइड, इन्ना फी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, बेशक इसमें तुम्हारे लिए साइंस है अगर तुम ईमान वाले हो। ठीक है जी। अच्छा जी, ये आपने अब हीलिंग का प्रोसेस देख लिया है। नेक्स्ट आपने एक देखना है 5 की 32, जिसमें हजरत आदम के जो दो बेटे हैं वो एक दूसरे, वो जब कुर्बानी देते हैं तो वन ऑफ देम टर्न्स अगेंस्ट द अदर। यही हम करते हैं, हमें किसी के साथ एनवी, जेलसी रख के तो हम उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। जिसको अल्लाह ने चूज किया उसकी कुर्बानी को एक्सेप्ट किया, और हमारी को नहीं किया तो हम फिर इस तरह से रिएक्ट करते हैं। लेकिन वो जिनकी कुर्बानी एक्सेप्ट होती है वो कहते हैं ला इन बसत्ता इलैया यदा का, मैं अपना हाथ आपकी तरफ नहीं बढ़ाऊंगा, लितक तुलानी माँ अना बिबासितिन, कि इफ यू स्ट्रेच योर हैंड अगेंस्ट मी टू किल मी, आई विल नॉट स्ट्रेच माई हैंड यादिया इलैया इलैका लिअक्तुला का, मैं अपना हाथ नहीं बढ़ाऊंगा आपको मारने के लिए। इन्नी अखाफुल्लाह रब्बल आलमीन, बेशक मुझे खौफ है अपने आलमीन के रब पर। इन्नी उरीदो अन तबुआ बिस्मी व इस्मिका, मेरा इरादा है दैट यू ड्वेल इन माई सिन एंड योर सिन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप किसी को फॉरगिव नहीं करते हैं तो आप बार बार उसके सिन में ड्वेल कर रहे होते हैं। किसी ने आपके साथ बुराई की है, लेकिन जब आप उसको बार बार याद करते हैं और उसको माफ करके छोड़ नहीं देते हैं, यू डोंट लेट गो, यू आर होल्डिंग ऑन टू दैट ट्रॉमा, you are holding on to his sin, so you are dwelling in that sin। so ये भी अपने आप को आपने चेक करना है कि आपने दूसरों ने कर लिया ना, आप हो गया, माफ करें, और लेकिन ठीक है अपने याद रखें कि दोबारा वो ये काम ना करने दे उसको,
लेकिन माफ करने का मतलब ये है कि उसके गलत काम को बार बार रिपीट ना करें सबके सामने. अच्छा. Don't dwell in their sin because it will keep bringing it up in yourself The victim ना. and you will play the And you're acting victim. like बिल्कुल. तो आप हील नहीं कर रहे हाँ, होते. yeah. शुरू में तो आप करते हैं थेरेपी के लिए to get over it and all that. But after some time you have to come, the healing comes when you've come to terms. ये होना था, हो गया. जी, this is 5 की 32. That's right. I'm reading 5 की, sorry, 28 and 29, not 32. जी. तो इसको आपने ये ख्याल रखना है कि आपने उसको अपने सर पे सवार नहीं करना. डोंट dwell in it and let it go. Let that act go and release that that trauma from you, because आप heal नहीं कर पाएंगे. आप उसको आग को ना सुलगाते रहेंगे अपने लिए. तो that is not going to help you. So you have to move on from that. अच्छा जी. देन नेक्स्ट, जब आप देखते हैं आप अपनी हीलिंग कर रहे होते हैं, सो 3 की 50 देखिए. उसमें एक सिस्टम बनाना होता है आपको आगे बढ़ के. तो 3 की 50, व मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात and I confirm what has come to me from the law. वली उहिल्ला लकुम बादल लजी, और जो हलाल है तुम्हारे लिए उसमें से कुछ, हुरिमा अलैकुम, और जो कुछ तुम्हारे लिए हराम है. ये जो हमने पहले देखा कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना, व्हाट इज अलाउड टू यू, व्हाट इज नॉट अलाउड. वजिअतुकुम बिआयातिम मिर रब्बिकुम, और एंड आई हैव कम टू यू विद signs from your Lord. फत्तकुल्लाह व अतीऊन, then take guard from Allah. तकवा करें और अताअत करें मेरी. इन अल्लाह रब्बी व रब्बुकुम, बेशक अल्लाह मेरा रब है और आपका रब. फाबुदूहु, उसको सर्व करो. सर्व हिम ओनली. हाजा सिरातुम मुस्तकीम, दिस इज द एस्टैब्लिश्ड वे. फलम्मा अहस्सा ईसा मिनहुमुल कुफ्रा, फिर जब ईसा ने एहसास किया कि उनमें कुफर आ रहा है, बिकॉज हम इंसान है ना, हम थोड़ी देर तो ठीक ट्रैक पे आते हैं, फिर हम इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बिकॉज that is part of us. We go in these phases of learning, understanding, correcting, and then go back to some wrongdoing as well. तो जब लगता है उनको कि वो कुफर न कर ले, काला मन अंसारी इल्लाह, तो वो कहते हैं कौन मेरी हेल्प करेगा अल्लाह की तरफ. अल्लाह की तरफ हेल्प करने का मतलब ये है कि जो आपने सीख लिया है अब आपको आगे पहुंचना. अगर आपने हीलिंग कर ली है अपनी, वो हीलिंग आपने अगलों को हेल्प करना है टू हील. सो दिस इज हाउ यू हेल्प अल्लाह, बिकॉज वी आर खलीफा. वी हैव टू हैव अ ड्यूटी टू परफॉर्म. वी हैव अ पर्पस टू लिव फॉर. सो वी हैव टू पास इट ऑन टू अदर पीपल so that they also heal. And then कालल हवारी योना, हवारी कहते हैं हवारी आपके जो आसपास रूहें हैं. नहनु अंसारुल्लाह, वी आर द हेल्पर्स ऑफ अल्लाह. आमन्ना बिल्लाह, हम ईमान लाते हैं अल्लाह पर. वशहद बि अन्ना मुस्लिमून, एंड बेयर विटनेस दैट वी आर ऑफ द सबमिटर्स. ठीक है जी. ये हमारा ये आपका जो है ना हीलिंग की रिक्वायरमेंट होती है. आप उसको भी अपने तक महदूद नहीं रख सकते. वो अल्लाह का फजल है. अल्लाह का फजल है आपके ऊपर कि कहीं ना कहीं आपने अपने ट्रॉमा से हील किया. तो ये इसी तरह हम अपनी सोशल गैदरिंग्स में, अपने बच्चों में, अपने जानने वालों में, उसी को एडमायर में घुसे रहते हैं. हाँ जी, वो वी हैव टू पास इट ऑन, पास इट डाउन, so that they also benefit from that healing process. How to admit it first. First we have to admit. अच्छा, Then. बिल्कुल पहले तो अपनी करें. You बात start यही from है, it's not about अपना. the other people, No, 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 fixing बिल्कुल yourself. जी. You start from yourself. पहले अपने को देखिए कि कहाँ कहाँ आप रिएक्ट कर रहे हो, कहाँ गलत कर रहे हो. What is the grief that is bothering me? What is the trauma that is behind this? थोड़ा रिसर्च कीजिए. पहले एक्शंस को ठीक कीजिए कि पॉज करके, तकवा करके. अगर नहीं भी समझ में आए तो कम से कम जो आप रिस्पॉन्स दे रहे हो उसको तो बेहतर कर लीजिए. सीखें how to communicate. A lot of times when we are not able to express ourselves, we become aggressive and violent.
तो वो भी बिकॉज हमें हेल्पलेस फील कर रहे होते हैं। तो रियल उसका जो मतलब उसके पीछे जो रीजन है, वी कांट कम्युनिकेट, तो हम फिर भड़क के तो बात करते हैं। तो फिर हमें सीखना है कि बात कैसे करनी है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज एन एडल्ट टू लर्न न्यू मेथड्स ऑफ कम्युनिकेटिंग, learn new ways of regulating our emotional side. जो कर लिया वो कर लिया, अब आपने अपने आप को थमाना है, इमोशनली रेगुलेट करना है। और वो चीज़ जब आप मॉडल करेंगे अपने बच्चों, अपनी फैमिली, अपने दोस्तों के सामने, वो ऑटोमेटिकली वो भी आपसे पिक करेंगे, बिकॉज आपका मिजाज बेहतर हो जाएगा और आप बेहतर फील करेंगे। आपकी पर्सनालिटी, जो अजाब जो है ना, अजाब इज नॉट आफ्टर डेथ, अजाब इज नाउ द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू, द एंजाइटी, द प्रेशर, अंदरूनी बेसकूनी इज अजाब, दैट इज द डिस्टर्बेंस। वहां से आप अगर आएंगे किसी एरिया में टूवर्ड्स सुकून, दैट इज योर जन्नत। एंड इफ यू कैन हार्नेस दैट बिकॉज ऑफ योर चेंजिंग पैटर्न्स, ये एपिजेनेटिक्स कहती है कि आपकी जीन्स, आपका डीएनए वही होता है। उसको ब्लेम मत कीजिए कि ये हमें रिसीव हुआ, नहीं, आप कैसे उसको रीड करते हैं वो आपने सीखा होता है अपने एनवायरनमेंट से। उसको आप चेंज देखिए, वही सिचुएशन, क्या वजह है, in the same situation one family member will respond one way, the other person will respond totally. अगर इतना ही पहाड़ टूटा था तो सबको एकदम से पैनिक में आ जाना चाहिए ना? No, the person who has the ability to regulate will pause. Okay, हो गया, देखते हैं क्या करते हैं, रुजू करें, रिसर्च करें, फिगर इट आउट, विल फाइंड अ वे। बड़ा कुछ हो जाता है। और एक बंदा जो होगा वो बिल्कुल ही ब्रेक डाउन कर जाएगा, उससे हैंडल ही, वो कहाँ कहाँ तक सोच लेगा जी, वो कहाँ कहाँ सोचेगा कि पता नहीं क्या क्या हुआ। तो ये चीजें जो है ना, ये समझने वाली है। लेकिन अल्लाह ने हमें हिदायत ही इसलिए दी है कि हम चेंज कर सकते हैं। किसी भी चीज को ये मत समझें कि दिस इज माय पर्सनालिटी एंड दिस इज हु आई एम, बट whoever puts in an effort, the effort has to be there. And those who are under your influence, जो कि आपकी बात सुन सकते हैं, जो कि आपसे सीखना चाहते हैं, उनको आपने रोल मॉडल, उनको आपने मॉडल करके दिखाना है। सेकेंडली, आपने उनको अपने से करीब लेकर आना। Now one thing is, even when you are looking at yourself and you find a flaw in yourself, कोई आपको weakness नजर आती है, don't judge yourself, be kind to yourself। ओके, आई एम डूइंग दिस, मैं ये गलती करती हूँ या गलत हूँ इस मामले में। बी एक्सेप्टिंग ऑफ योरसेल्फ। उसके बाद आप अपने आप को ढूंढे, ठीक कर सकते हैं कंपैशन के साथ। तो अपने आप, इफ यू गोना बीट योरसेल्फ अबाउट थिंग्स, आई एम सो बैड एंड दिस इज रॉन्ग, ऐसे नहीं करना। सेम थिंग फिर आप लोगों को भी करते हैं, तो लोगों को भी ऐसे नहीं करना। आपको बंदा गलत काम करता हुआ नजर आता है, बिठा के प्यार से समझाइए, क्योंकि वो तभी सुनेगा। लुक फॉर अ गुड टाइम वेयर यू कैन शो देम दैट दे स्टिल बिलोंग, दे स्टिल एक्सेप्टेड, दे आर लव्ड। बिकॉज एक इंसान कंप्लीटली बुरा नहीं होता है कभी भी। एक छोटी उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, कोई डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड द पर्सन विल रिस्पॉन्ड टू यू व्हेन यू कम फ्रॉम अ स्पेस ऑफ compassion. Give them the safe space. Safe space दीजिए। वो सेफ स्पेस में वो आपको अपना कॉन्फिडेंट बनाएगा, आपके साथ शेयर करेगा कि प्रॉब्लम क्या है, जड़ में जाइए कि उसको कहाँ से गुस्सा आ रहा है, व्हाट इज ही सफरिंग फ्रॉम, व्हाट इज ही पुटिंग अप विद। कहीं ना कहीं आपको क्लू मिलेगा कि इस बच्चे को तो या बच्ची को तो पता नहीं ये सीखा उसने, तो फिर आप उनको हील करने का तरीका बताएं। तो वो शेयर करेगा तो पता चलेगा। आप उनको प्यार देंगे तो वो आएंगे। आप पहले उनको कह दें, हाँ ये क्या कर लिया, यू नो। Sometimes even that doesn't work. People clamp up. हाँ, देखिए, it takes time. आपने देखिए, आपने ठीक है, आपने अपना बताया कि ये गलत है, ये है, लेकिन फिर You want to find out the root cause, जैसे। right, so you have to, that takes time. You have to keep, अगर उस वक्त वो क्लैंप अप कर जाते हैं तो आपको कई और तरीकों से कम आप बुलाते रहें, बिठाते रहें, नॉट फॉर दिस रीजन ओनली, आप उनको किसी और तरीके से कनेक्शन बिल्ड करें।
और दूसरा ये जी है एक्चुअली वो बच्चा जो है, जी अगर बच्चा है जी या वो या adult बड़ा है, भी एडल्ट भी ज्यादातर adult adult भी है, एडल्ट अक्सर भी adult उस मामले में वो at बच्चे ही time when होते he हैं ना बिकॉज knows दे हैवंट that लर्न person knows कि मुझे करेक्ट किया जाए तो अवॉइड भी करेगा, वो भी अवॉइड करेगा बहुत बिल्कुल अग्रेसिव करेगा भी हो जाऊं, अग्रेसिव भी हो जाए बिल्कुल अवॉइड भी करेगा, लेकिन आपको अपना तरीका इस्तेमाल करते आप ही रहना। जी आपको जुड़े रखना है सबसे पहला काम जो ये है ना अबैंडन नहीं करना किसी को बिल्कुल तो आपको उनको from the right side you have to toxic. yes But it's a toxic. नहीं नहीं if they're toxic for you Sometimes it is. and there is It's not and healthy for you to be in फिर that फिर then you situation. have to distance then you have to distance and maintain distance from फिर आप नहीं कुछ कर सकते but maybe there is somebody else who can reach out to them because वो हर एक के साथ टॉक्सिक नहीं होते एक इंसान जो टॉक्सिक होता है ना आपके साथ वो probably आपके साथ इसलिए होता है because there is something that they need to resolve about themselves that is why they become aggressive जब किसी इंसान को पता चल जाए ना कि मुझे इनके साथ अच्छा बिहेव करना पड़ेगा because you know there is something that is common or I don't know there are lots of things that can go in the dynamics of a relationship so उसमें वो फिर आपसे खुद ही जो है ना वो ज़्यादा aggressive होना शुरू कर देते हैं because they have to work at it they don't want to work at it then you have to pull yourself away then you can't maintain that पहले तो इंसान अपने आप को ठीक करे That Will- I agree हाँ with. जी सब चीजें साथ चल रही It's होती your है party. because when you can be that example yes that in itself will bring will bring someone someone towards and healing also auntie if you change like पहले अगर आप किसी को blame करते थे और वो आप change कर दें अब आप उस बात की तरफ जाएं ही ना जो वो गलत कर रहे हैं और आप उनको प्यार से बुलाएं बिठाएं और उनके साथ टाइम स्पेंड करें and you know without raising that issue which is a bone of contention then they will also that is the change that you bring about पहले आपने अपने अंदर change you कर can दिया teach more by example by example and then they will come to you to ask for more and You can that teach more by silence. by silence exactly it doesn't always mean that you have to speak you can teach through silence also true but मकसद ये है कि आपने किसी इंसान को उसके बिहेवियर के बेसिस पे completely जज नहीं करना है बिहेवियर को जज That's कीजिए good. या बिहेवियर को जज कीजिए don't label that person as somebody you know this and that या मगर कई होते हैं behavior तो ठीक ही बड़ा हो सकता है अच्छा Behavior ठीक इंसान तो वही होता है इंसान You can't तो वही make up. रहेगा वो कोई Not रहेगा अच्छा, आपने like उसको people have बिहेवियर a को पॉइंट different करना है impression. कि इसको आप Totally, इस you तरह know. कर And दीजिए then is बेस्ट another तरीका version होता है कि that आप बताएं You can आप be इस a तरह से great बात friend with a कीजिए terrible आप इस तरह spouse. से You मुझे can be a समझाइए great or son with a whatever you know terrible the cases and husband. yeah So yeah, different relationships demand different traits. different traits बिल्कुल बिल्कुल यही बात है तो बेसिकली हमने Sort of become a punching bag. यस easily. वो भी नहीं नहीं देन यू आर डूइंग आप अपने साथ डिससर्विस कर रहे हैं ये भी आपने ख्याल रखना है कि अपने साथ जुल्म नहीं होने दीजिए why are you Stand up. presenting yourself again and again no you don't present yourself for being beaten up or bullied no you have to maintain safe distance to keep yourself out of their reach कि वो आपको अफेक्ट ना कर सके लेकिन आपने साथ साथ अपने आप पे काम करना Boundaries. बाउंड्री सेटिंग Healthy boundaries. जी ये जी आंटी नहीं मैं लिबर्टी हूँ मैं वो बंदा उस तरीके से बिहेव करता है और आप उसको ठीक करना चाहते हो तो at times when person is getting away from you यस obviously when he knows he when उनको पता हो आप फिर ही मैं करना ये चाह रहे देखूं हो कि ये पिन कोड और एड्रेस उसको अच्छाई के बिल्कुल जी यही बात है that person will then maybe दैट्स द बिल्कुल मैं यही पॉइंट आपको बिल्कुल यही पॉइंट कर रही हूँ कि आप अच्छे पे कनेक्ट कीजिए आप उसकी उन खूबियों की तरफ फोकस डालिए जहाँ वो अच्छा है इंसान वहाँ से कनेक्ट कीजिए उनको करीब लाइए उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए और लेट देम फील रिलैक्स्ड सो मच सो कि वो आपसे कुछ शेयर करें कि उनको प्रॉब्लम क्या आ रही है या आपसे वो सीखने के काबिल बन जाए कि मुझे समझाइए मैं किस तरह से हैंडल करूं इफ समथिंग ट्रिगर्स मी
and I get kind of, out of control, what should I do? तो आप उनको तरीके समझाएंगे, ये करें, ये करें, ये करें, because you're wiser and because you've done the work yourself and because you understand how to manage these things. तो ये बिल्कुल बात हो रही है. अब देखें, किसी को एंगर मैनेजमेंट जो है ये पूरी साइंस है, तो लोग अगर कुछ ना हो सकता उसके बारे में तो लोग ना जाते ये करने के लिए. लेकिन कंटेनमेंट करना, अपने जो भी एक्सप्रेसिव आउटबर्स्ट्स, जो भी आपके बिहेवियर्स हैं जो कि दूसरों को भी तकलीफ देते हैं और आपको भी बाद में तकलीफ देते हैं, बिकॉज यूर समवेयर आपका डिसरेगुलेशन है, आपने ये कोपिंग मैकेनिज्म सीखा, आपने गलत पैटर्न को अडॉप्ट किया, लेकिन आप किसी भी वक्त अपनी एफर्ट डालेंगे तो आप इसको चेंज कर सकते हैं. तो अब हम सबको तो नहीं ना कह सकते, जो जो लोग गलत काम, गलत अगर पैटर्न्स आ गए तो जाएं जी, आप भी निकल जाए, आप भी निकल जाए, तो ऐसे नहीं चलेगी दुनिया. सो ये दुनिया में ये जितने लोग, पहले सबसे पहले आपको अपने आप को सेफ करना है, प्रोटेक्ट योर सेल्फ, देन फ्रॉम दैट सेफ्टी यू हैव टू कंटेन देम. अब जिस तरह डॉक्टर करते हैं, अगर आप जरासीम से भरे हुए आप अपनी बीमारी में जाएंगे तो डॉक्टर कहे स्टे अवे, आई कांट डू एनीथिंग, आप तो मुझे बीमार कर दोगे. ऐसे नहीं. डॉक्टर विल वेयर द गार्ड्स, द मास्क, द ग्लव्स, द एवरीथिंग, and then we'll go and deal with the bimari. I know you'll do that to your children. Yes. Or your husband. So Yes. direct contact. Yes. But I think that there's And your so many, friends, that we have this जी, conversation also. जी. Energy vampires around Yes, us. yes. बेचारा वाला मुल्क ही इतना नहीं नहीं, आप देखिए अगेन, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत इम्पोर्टेंट है जी. यू हैव टू अब्सॉर्ब पॉजिटिव गुड एनर्जी. बिल्कुल, यही तो बात है सारी. एक इंसान देखें पैटर्न सेट करता है ना अपना, पूरी फैमिली पे वो अफेक्ट आता है. अगर आप नोट करें तो वन पर्सन जो कि चुप रह के अपनी रेगुलेट कर लेता है ना गुस्से को, सब में एक जो है ना उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आता है. या आप अपना कोई बिहेवियरल पैटर्न चेंज करते हैं, हेल्थ वाइज भी अगर आप देखें, एक इंसान शुरू करता है अपने आप को हेल्दी रखना तो बाकी सब पे भी उसका इफेक्ट असर पड़ता है. तो ये चीजें एकदम से चेंज नहीं होती, they change over time, but we all who are learning to correct, this is the area we have to understand कि हमने compassion के साथ, because Rasul Allah is Rahmatul lil Alameen. So Rahmatul lil Alameen is for all worlds, he is Rahmat. तो जब आपने भी उनको फॉलो करना है, उनकी अताअत करनी है, तो आपने लोगों को कंपैशन के साथ अप्रोच करना है. So it's very easy to kind of talk bad about people and just kind of make yourself feel that you are the pious one. ऐसे नहीं करना. तो हमें इंसान की डिग्निटी रखनी है. Every human deserves certain respect. उनकी बुराइयां नहीं करनी है, और अगर हम उनको हेल्प नहीं कर सकते तो कम से कम उनके बारे में गलत बातें भी ना करें. एंड अगर किसी तरीके से हेल्प कर Do you want to, is he going to bring something for you? Yeah, I just have to sign some. अच्छा, वो उनको अंदर लेकर आना, मैं भी sign कर. ठीक है ना? अच्छा जी. अच्छा, जो लास्ट वन है ना जी, जो कि आपको हेल्प करता है हील करने में, इज ग्रैटिट्यूड. सूरह 14, हाँ जी, सूरह 14 आयत नंबर 7. बिल्कुल, आपने अपने आप को शिफ्ट करना होता है, your mindset, because we tend to just stay focused on what's going wrong and we forget all that is going right. तो ये बड़ा एक ट्रैप होता है जो कि इंसान जहाँ तकलीफ होती है, जहाँ डिस्कम्फर्ट में आता है, फौरन ही अपने आप को ना बनाना शुरू कर देता है कि मैं I'm going through so much, and that also, then when you hold on to it, it becomes a trauma. कि you've had to suffer so much. Yes, I had to suffer so much pain, so much hurt. मैं बेचारी, बिल्कुल वो आपने नहीं. उसमें yes, you feel, you give yourself validation, सब कुछ हो गया, अब get over it. उसमें से निकलना बहुत जरूरी है, और उसका तरीका आपका होता है शुक्र अदा करने का. Surah 14 ayat number 7, Allah says, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ, and remember your Lord
made it, declared it publicly, la in shakartum la azidannakum, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा. See? तो शुक्र is the state of gratitude. वाला इन कफरतुम इन्ना अजाबी लशदीद, और अगर तुम कुफर करोगे तो शुक्र का ये ऑपोजिट यूज हुआ है, बिकॉज कुफर इज रिजेक्टिंग द ब्लेसिंग्स दैट यू हैव. तो अगर आप शुक्र करेंगे, ब्रिंग योर फोकस टू द ब्लेसिंग्स एंड स्टे इन ग्रैटिट्यूड, इट विल हेल्प यू हील फास्टर, बिकॉज यू विल रियलाइज ओके ये तो हो गया, ये चला गया, नुकसान हो गया, समथिंग हैपेंड, look at all that is still there. It could have been worse. What more could have happened? तो वो आप शुक्र अदा करें तो अल्लाह says I will give you more, because आपका mindset change हो जाता है. When you stay in the mindset of victim or destitution or emptiness, so then you're attracting the same. That's what you keep attracting more, because you realize, you manifest that in your life. And अगर आप अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह करते रहें, शुक्र अदा करते रहें, तो फिर वो अल्लाह जो कह रहे हैं कि मैं और ज़्यादा दूंगा, तो वो actually that's the feeling of abundance that you have, the feeling of having enough, contentment. तो वो जब आ जाए तो चाहे बाहर है नहीं है, it doesn't matter. आप कितने लोगों को देखते हैं जो गरीब भी होते हैं लेकिन बड़े खुश होते हैं, कंटेंटमेंट होती है, सेटिस्फैक्शन, बिकॉज दे फील दैट जो भी है अल्लाह दे देगा और आ जाएगा. और अल्लाह देते हैं, बिल्कुल देते हैं अल्लाह. अल्लाह तो कह रहे आ जाए ना ईमान. हाँ, ये चरिंद परिंद देख लीजिए, परिंदे देख ले, सारे कायनात इस पे चल रही है. वैसे भी जी. dangerous because you are then going towards kufr. You are going towards kufr. If you stay in that state for longer, then you are rejecting all that is there. तो आप सारी नेमतों का तो कुफराना कर रहे हैं, कुफर कर रहे हैं, तो आप डिनाई कर रहे होते हैं. इन्ना अजाबी ला शदीद, एंड अल्लाह सेज फिर मेरा अजाब शदीद है. अगर आपने ये काम करना है तो फिर आप आ गए डिस्टर्बेंस में, आ गए आप मेंटल स्ट्रेस में, फिर आप उसी के अंदर बैठे रहे. वो यू हैव ब्रॉट इट अपॉन योरसेल्फ, because you're not looking at the blessings, you're only looking at what you lost, and then you stay in that state of ye ho gaya, wo ho gaya, and stress. So ये आप खुद ही ले आते हैं अपने ऊपर अजाब. तो ये सब चीजें जो है, इन सब का लिंक सेल्फ इन्फ्लिक्टेड. जी. तो ये अब आपकी हीलिंग जो है आ गई आपका थिंकिंग पैटर्न चेंज करने से, सोच बदलने से, ग्रैटिट्यूड करने से, और वो जो हमने अल्लाह के साथ कनेक्शन बनाने से, चीज़ें चेंज करने से, अपने पैटर्न्स को माइंडफुली ऑब्जर्व करके यू हैव टू चेंज देम, एंड देन यू हैव टू गिव. ज़कात बहुत ज़रूरी है, बिकॉज उसी में से आपने जो आपके पास एक्स्ट्रा है उसमें से देते रहेंगे तो वो आपकी खुशी का जरिया बनती है. यू एक्चुअली फील दैट यू हैव अ लॉट व्हेन यू गिव. तो ये भी एक पूरा साइकिल है जिसको हमने फॉलो करना होता है. एंड मोमिन जो है, लास्ट में मोमिन जो है उसकी क्वालिटी होती है एक, कि वो शर में से खैर निकालता है. तो आपको कोई भी अल्लाह चीज भेजते हैं जो कि आपको लग रहा हो, शर इज एनीथिंग बैड हैपनिंग टू यू, नेगेटिव, एनीथिंग नेगेटिव, उसमें से भी यू सी द लाइट. आपको नजर आएगा जब आप अपना माइंडसेट बिलीविंग माइंडसेट बना लेते हैं, आपको उसमें भी अल्लाह की कोई ना कोई अच्छाई नजर आएगी. दिस वाज गुड फॉर अस दैट दिस हैपेंड, दिस विल टर्न अराउंड टू बी बेनिफिशियल फॉर अस. वो आपकी इंसाइट बन जाती है जब आप ईमान रखते हैं कि अल्लाह का हर काम आपकी बेहतरी के लिए, वो चाहे उसमें कोई तोड़ फोड़ हो रही हो आपकी लाइफ के अंदर, या कोई भी चीज आपसे छूट रही हो, कोई छिन रही हो, कोई आपको लग रहा हो कि नुकसान हो रहा है, उस वक्त नहीं आती. लेकिन ईमान का तकाजा, बिल्कुल, लेकिन ईमान का तकाजा ये है कि वो आप इवेंचुअली यू विल कम अराउंड टू सी कि इसमें कोई ना कोई, आई डोंट सी इट येट बट देयर इज सम बेहतर, वो आपका सुकून का बायस बन. तो ये सारी जो चीजें हैं, इट्स ऑल इन द माइंड. वी हैव टू ट्रेन आवर माइंड टू थिंक पॉजिटिव, टू कीप बिलीविंग एंड टू कीप चेंजिंग. व्हेन वी गो शिफ्ट टू अ रॉन्ग थिंकिंग पैटर्न, उसको हमने चेंज करना है.
और अपनी जिंदगी के अंदर आप रिफ्लेक्ट करते जाइए कहाँ कहाँ आप आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, उन चीज़ों को आप कैसे अपने अंदर आपने बेहतरी में लेकर आना है, अपना एटीट्यूड बेहतर करना है, ठहराव लेकर आना है, improve your disposition yourself, and then help others do the same. What's the best way As to for anger management? बिल्कुल एंगर मैनेजमेंट What's पॉज, the best way? एंगर का तो जी पॉज, Pause एक तो and let सिचुएशन that में moment go एंड and don't respond immediately. नॉट डोंट रिस्पॉन्ड इमीडिएटली, बिल्कुल। और दूसरा आपने ऐसी सिचुएशंस के लिए पहले से प्रिपरेशन करके जानिए पता ही जहां नहीं आपको होता ना पता कि हो। when जी जी, the अगर तो situation पता ना हो, arises. यस, फिर तो ठीक है। टेक्निकली आपके ब्रेन लाइक कह दो कि एक स्टिमुलस